It is my joy to share the word with you this morning. मुझे बहुत आनंद है कि प्रभु का वचन मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। Okay, we are going to continue our series on foundations. और ये जो बुनियाद की शिक्षा जो है उसको हम जारी रखेंगे आज। Okay, and this morning we will look at this topic called kingdom people. और आज का जो विषय है वो है राज्य के लोग। Okay, Colossians 1 verse 13 says, कलोसिया अध्याय 1:13 कहता है कि क्योंकि उसने हमें अंधकार के अधिकार से बचाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। okay, chalo, let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, thank you, Lord, for this day. Thank you for your word, Lord, that changes us, that guides us. Lord, that literally, Lord, gives us life, Lord, and it gives us wisdom, and it has everything that we need, Lord, for life and all of godliness, Lord. We pray as we listen to your word, Lord, that you will keep our eyes open to see, ears open to hear, minds open to understand, and hearts open to receive what you have for us this morning. Miss in Jesus' most precious and holy name. Amen. 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 Okay. So all of us are citizens of India by birth. और हम सब जो है भारत के नागरिक है। Yes? Yes. हाँ। Correct? Okay. जन्म से. जन्म से, yeah. Okay. Thank you. Yes. But the Bible says that besides being born in your country of birth, besides that citizenship, there is another citizenship that we carry. और बाइबल में लिखा है कि आपका जो नागरिकता है इधर यहाँ का भारत का, उससे भी अलावा और एक नागरिकता है। Okay, Romans 5 verse 12 says, रोमियो 5:12 वचन कहता है कि इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रविष्ट हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर पहुंच गई। Okay, Psalms 51 verse 5 says, और भजन संहिता 51:5 कहता है कि मैं निश्चय में अधर्म से उत्पन्न हुआ और मेरी माता ने पाप में मुझे जन्म दिया। Okay, so every human being all across the world is not only born doesn't only have the citizenship of the country that he or she is born in, but is also a citizen of the kingdom of darkness or death. और हर एक जो व्यक्ति जो है जिसका जो यहाँ पे दुनिया में पैदा होता है, उसका जो वो उस देश के नागरिक ही नहीं होते, लेकिन उनका जन्म एक मृत्यु के राज्य में जो और ये अंधकार के राज्य में भी होता है। All of humanity is born into this. और सारी जो मानव जात है उसका जन्म इससे ऐसे ही हुआ You है। and I also. आप और मैं वैसे ही। But, लेकिन okay, 2000 years ago a king came into that kingdom of darkness. 2000 साल पहले एक राजा ने इस अंधकार में जन्म लिया। He didn't come with armies or he didn't come with a lot of shosha. He came in humility. और वो जो अपनी सेना के साथ नहीं आया और पूरा शोर मचाते हुए नहीं आया, लेकिन एक नम्रता से आया है। Okay, you're surrounded by temptations just like us, but he didn't give to sin. सारे मोह जो है उसके आजू बाजू में थे, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। He carried the authority of heaven. और स्वर्ग का जो अधिकार है वो उसके ऊपर था। Okay, and the sin and death that you and I were supposed to go towards, he took it upon himself. और जो पाप और मृत्यु जो हमें मिलनी चाहिए थी दंड उसका, वो लेकिन वो अपने ऊपर उसने लिया है। Okay, and he entered into this darkness and he defeated it with his life. तो इस अंधकार में उसने प्रवेश किया और उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त किया। Okay, with his light. और उसके प्रकाश के द्वारा। Okay, he died on the cross, but he also rose again. और क्रूस पे मारा गया, लेकिन उसके बाद वो फिर से जीवित उठा है। Okay, years of this darkness's reign was defeated by him on the cross. और जब वो ये सारे यानी सालों से चलता हुआ अंधकार के राज्य को यीशु ने मिटा दिया है क्रूस के ऊपर। What's his name? उसका नाम क्या है? What? Very good. You gave away यार। मैंने एक्चुअली ये क्या था कि जो सही आंसर देगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा, बट अभी यशवंत ने बोल दिया आंसर, तो किसको गिफ्ट नहीं मिलेगा? नेक्स्ट टाइम। Okay, his name is Jesus. इसका नाम यीशु है। Okay, Colossians 2:15 says, कलोसियो 2:15 में ऐसा लिखा है, 2:15 कलोसियो लिखा है कि उसने जो राज्य करता है, जो अधिकारी है, उनका जो अधिकार निकाल लिया और उन्हें पूरी तरह से खुले से उसने उसका
उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है Okay. क्रूस के द्वारा। 1 Peter 1 verse 18 to 19 says, और 1 पेत्रस 1:18-19 कहता है कि हमको चांदी या हमको सोने से खरीदा नहीं गया है, पर हमको यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। आमेन, ओके, हमको खरीदा गया है यीशु मसीह के लहू से। आमेन, ओके, यस, और उसने हमारे लिए एक कीमत भरा है, और वो कीमत था उसका लहू, Yes. है ना। और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई भी उसमें विश्वास रख के जीता है तो वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, ओके, Amen. यूहन्ना 11:26। ओके, और ये अच्छी खबर है ना, करेक्ट, ये बहुत अच्छी खबर है ना। पर इससे भी अच्छा खबर है, और वो खबर ये है कि उसने हमको सिर्फ ऐसे अंधकार के राज्य से बाहर नहीं लाया, पर उसने हमको उसके जो रोशनी का जो राज्य है उसमें स्वीकार किया है। आमेन, आमेन, है ना। तो वो एक बहुत अच्छा खबर है। ओके, नाउ वी हैव अ न्यू सिटीजनशिप। और इसके कारण हमारी एक नई नागरिकता है, ओके, वी हैव अ न्यू आइडेंटिटी। एक नई पहचान है। Okay, 1 Peter 2 verse 10 says, once you were not a people, but now you are God's people. 1 पेत्रस 2:10 में लिखा है कि एक समय था कि आप लोग नहीं थे, लेकिन आज आप परमेश्वर के लोग हो। Okay? हमको कैसे पता है कि हम इंडियन है? हमारे पास कागजात है, करेक्ट। हमारे पास कोई के पास पासपोर्ट रहेगा, सबके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, करेक्ट। तो बाइबल कहता है कि जब उसने हमको उसके रोशनी के राज्य में लाया, तभी उसने हमारा नाम जो जीवन का जो पुस्तक है उसमें अपना नाम लिखा है ना, उसमें अपना नाम लिखा है। और यीशु उसके शिष्यों को कहता है कि तुम इस चीज के लिए खुश मत हो कि व्हाट आर डीमंस, कि शैतान भाग के जा रहे, तुम इस चीज के लिए खुश मत हो कि लोग चंगा हो रहे, पर ये चीज में तुम्हारी खुशी रहनी चाहिए कि तुम्हारा नाम वो किताब में लिखा है। आमेन, है ना। उस स्वर्ग के पुस्तक में, वो जो जीवन का पुस्तक है, उसमें हमारा नाम लिखा है। आमेन, है ना। वो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तो तुम एक दूसरे को कहो कि वी आर गॉड, व्हाट इज वी आर गॉड्स पीपल, हम परमेश्वर के लोग हैं। अरे थोड़ा जोश में बोलो, खुश होके बोलो। Okay, so what is the kingdom of God like? Okay, yeah. परमेश्वर का राज्य कैसा है फिर? Okay, so whenever the Bible says kingdom of heaven, kingdom of God, kingdom of Christ and God, kingdom of light, they are the same thing. और जैसे जब भी ये पवित्र शास्त्र कहता है कि ये स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, ख्रिस्त और परमेश्वर का राज्य या प्रकाश का राज्य, ये जो है ये सारी बातें एक ही है। ओके, ये अलग अलग राज्य नहीं है, ये सब एक ही राज्य है। हाँ बोलो, ना बोलो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, तो पहला चीज परमेश्वर के राज्य के बारे में, द किंगडम ऑफ गॉड इज इटर्नल। और पहली बात है परमेश्वर के राज्य के बारे में कि ये राज्य जो है वो सनातन है। Psalm 145 verse 13 says, और भजन 145:13 कहता है कि तुम्हारा राज, परमेश्वर तुम्हारा राज्य है, सदा चलने वाला राज्य है, और आपकी सार्वभौमता सदा के लिए, सारी पीढ़ियों के लिए है। ओके, Daniel 2 verse 44 says, और दानियल 2:44 लिखता है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर जो स्वर्ग में जो परमेश्वर है, वो राज्य इस तरह से प्रस्तावित करेगा कि उसका कभी नाश नहीं होगा और सदा के लिए चलता रहेगा। okay, the kingdom of God is eternal. और इसका अर्थ है परमेश्वर का राज्य सनातन है। The second thing, his kingdom is not just earthly, it is universal. और ये जो राज्य है सिर्फ भौतिक नहीं है, लेकिन वो सारे विश्व का है। Psalm 103 verse 19 says, और भजन 103:19 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना जो सिंहासन है ये स्वर्ग में प्रस्थापित किया है, और उसका राज्य सारे लोगों के ऊपर है। okay, God reigns over the entire universe. सारे विश्व के ऊपर परमेश्वर का राज्य है। So from the smallest of atoms to the biggest of mammals, God reigns. और छोटी छोटी चीजों को लेके बड़े बड़े जीव जंतु, उनके ऊपर ही उसका राज्य है। Everything that is created on heaven, on the earth, in the universe, every single thing
it comes under the rule and authority of God. तो जो भी बातें परमेश्वर ने निर्माण की है, रचना की है, ये सारे विश्व में उसके ऊपर परमेश्वर का राज्य है। Next thing, the kingdom of God is spiritual. और उसके साथ भी है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो आत्मिक है। 1 Corinthians 15:50 tells us, और 1 कुरिन्थियों 15:50 कहता है कि जैसे अपना ये कैन यू कम इट, हाँ, ये अपने खून और पसीने से हम ये परमेश्वर का राज्य हासिल नहीं कर सकते हैं, मांस और लहू से। okay, the king's presence defines the kingdom. और परमेश्वर की राजा की उपस्थिति के कारण ही वो राज्य बनता है। Wherever the king reigns, the kingdom is present. जहाँ जहाँ राजा राज्य करता है वहाँ पे उसकी जो सार्वभौमता है वहाँ है। Okay, so wherever people meet or wherever someone is submitting to God, that is the kingdom of God present there. Okay. और जहाँ जहाँ भी लोग परमेश्वर को समर्पित करते हैं वहाँ पे परमेश्वर का राज्य उपस्थित हो जाता है। The church is the visible expression of the kingdom of God. और जो कलीसिया है वो दर्शाता है परमेश्वर के राज्य को। Okay, जब लोग चर्च में आते हैं, that time they should get a glimpse of heaven. और जब भी लोग कलीसिया में आए तो उन्हें एक स्वर्ग का जो राज्य है, स्वर्ग का कुछ ना कुछ तो अनुभव होना ही चाहिए। You know what we are going to do in heaven? We are going to be praising Jesus all the time. We are going to be worshiping Jesus all the time. Right? क्या आपको मालूम है आप स्वर्ग में क्या करने वाले हो? सदा के लिए हमारे प्रभु यीशु की आराधना वहाँ होगी। What do we do in church? What are we coming to church for? और हम यहाँ पे कलीसिया में क्यों आते हैं? We worship Jesus here together, right? क्यों ये? This is what heaven is going to be like. People from every tribe, from every tongue coming together, worshiping our Savior and our Lord Jesus Christ. Yeah? और हम आते हैं इकट्ठा होके परमेश्वर यीशु की हम आराधना करें। वैसे ही स्वर्ग में भी होगा जब सारी जाति के लोग इकट्ठा होके यीशु की आराधना करेंगे। Okay. So the kingdom of God is here but not yet. और परमेश्वर का राज्य यहाँ है लेकिन अब तक नहीं। Okay, so wherever Christ people live according to his word, his kingdom is present. और जहाँ जहाँ भी लोग यीशु के जो वचन है उसके अनुसार चलते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का राज्य Okay, होता so है। wherever the church reaches among the poor, in communities, hospitals, prisons, the kingdom of God is advancing. और जहाँ जहाँ पे लोग जाके प्रचार करते हैं और परमेश्वर के राज्य को दिखाते हैं वहाँ पे उसका राज्य आता है। Our work that we do with Karuna, जो हम करुणा के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, that is taking God's light, that is taking the light of the kingdom into the darkness. और वो है कि परमेश्वर के प्रकाश को लेके हम वहाँ अंधेरे में लेके जा रहे That हैं। is reflecting the heart of Christ for the poor and for the sick. और परमेश्वर का यीशु का जो हृदय है जो पीड़ित है, जो बीमार है, उन लोगों के लिए वो हम दिखाते हैं। That is bringing God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य को लेके आते हैं हम लोग। People who no one else wants to touch, we are saying we are here to serve you. जो लोग जैसे जिनको लोग अछूत मानते हैं उनको हम जाके उनकी सेवा कर रहे हैं। That's the kingdom breaking in. और यही है राज्य जो अंधकार में जा रहा है। Okay, but this light has not reached every tribe and every nation and every place. और लेकिन ये प्रकाश सारे जातियों में, सारे जगह पे, सारे राष्ट्रों में नहीं पहुंचा है। So the kingdom is here but is not fully here. इसका मतलब है कि राज्य यहाँ पे है लेकिन पूरी तरह से नहीं अब तक। Okay, when Christ returns, when he comes back, we will see the kingdom in all its fullness and its glory. लेकिन जब यीशु वापस आएंगे तो परमेश्वर के राज्य को पूरी महिमा के साथ हम देखेंगे। Okay, the kingdom is marked with righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और जो राज्य है वो परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है, धार्मिकता, शांति और आनंद। Okay, it is a kingdom of peace because God restores what is broken. और ये राज्य जो है वो शांति का राज्य है क्योंकि जो टूटा हुआ है वो परमेश्वर उसको स्थापित करता Okay, है। and he's told us multiple times in his word that he will not leave us nor forsake us. और बहुत बार परमेश्वर ने लिखा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ताकि त्यागूंगा भी नहीं आपको। Okay, and he says that my peace which transcends all understanding, which means no matter what situation you are in, no matter how horrible, no matter how good, whatever happens, you will have the peace of Christ in you. और उसने कहा है कि यो शांति, मेरी शांति जो तुम्हारे समझ के भी परे है, तो कुछ भी आपकी परिस्थिति हो
क्या कुछ भी आपको लगता हो, कैसे भी कौन से भी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन उसकी शांति रहेगी ही रहेगी। Okay, the kingdom has peace. और ये जो राज्य है वो शांति का राज्य है, Okay, and it has joy. और उसमें आनंद है। Once again, this joy doesn't come from, how comfortable we are or what we've achieved in life or how nice the places where we are at. This joy comes from knowing Jesus and knowing that our name is written in the Lamb's book of life. और जो Yeah? आनंद जो है वो हम कैसे रहते हैं, कितना आराम मिल रहा है, कितना अच्छा खा रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उससे नहीं, लेकिन वो जो आनंद है परमेश्वर के राज्य में रहने के कारण, यीशु के साथ रहने के कारण वो है। Okay, but God has not called us to just sit there and be like, okay, fine. We are here, we are part of like millions of other people. और परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम आके बैठे और आनंद मनाए, हाँ हम सबके साथ में है। Okay, we are called to be ambassadors of the kingdom. लेकिन उसने हमें बुलाया है ताकि हम उसके राजदूत हो। Okay, 2 Corinthians 5 verse 20 says, 2 कुरिन्थियों 5:20 कहता है कि हम यीशु के राजदूत है, कि उसके द्वारा परमेश्वर, हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को अपना सुसमाचार बता रहा है। okay, every country or organization, most organizations, they pick an ambassador that can represent it. और हर एक जो देश है उसका एक राजदूत होता है। Okay, now this ambassador, he is the face, he is the perception of this country or this organization to the people that meet him. और ये जो राजदूत है वो जो जहाँ पे रहते हैं वो अपने जो राष्ट्र है उसको दर्शाता है उन लोगों के बीच में। Okay, the way people feel about him is the way they will feel about the nation. मैं ऐसे ही उठ के जाके नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे आज राजदूत बनना है, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए लोगों को तुम्हारे बारे में अच्छा बोलना पड़ता है, तुमको चूज किया जाता है राजदूत बनने के लिए। ओके, और पॉल कहता है कि आप और मैं राजदूत है यीशु के राज्य के। ओके, वो परमेश्वर ने हमको वहां पे बिठाया कि वो हमको राजदूत, उसके राज्य का राजदूत कहलाता है। इसका मतलब कि हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम, है ना, लोग हमें नहीं देख रहे, पीपल थ्रू अस सी क्राइस्ट। हमारे द्वारा लोग यीशु को देखते हैं। I want to ask you, when people see you, do they see Jesus? और हमारे लिए प्रश्न है, अगर आप, क्या लोग आपके द्वारा यीशु को देखते हैं? Okay, when they hear you, when they experience your life, are they seeing Jesus? जब वो लोग आपको सुनते हैं, क्या आपके जीवन के द्वारा उन्हें यीशु का अनुभव मिलता है? Okay, कोई भी दो राष्ट्र के राजदूत सेम नहीं होते। इंडिया का राजदूत और चाइना का राजदूत सेम नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो लोग अलग अलग देश से हैं। उनका जो कल्चर है, उनको व्हाट इज अपब्रिंगिंग, उनकी जो वाओ संस्कृति, हाँ, उनकी जो परवरिश होती है, उनकी जो संस्कृति होती है वो अलग होती है। वैसे ही हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश यीशु में है, दुनिया जैसी नहीं है। पर अगर हम दुनिया जैसे रहेंगे, अगर हम दुनिया जैसे जिएंगे, तो क्या दुनिया हम में खुद को देखेगी या यीशु को देखेगा? है ना, उनको हम में कुछ अलग दिखना चाहिए, है ना। जब लोग गुस्सा करते हैं उनको हम में प्यार दिखना चाहिए, है ना। जब लोग कहते हैं कि तूने मुझे एक मारा, मैं तुझे 3 मारूंगा, और जब हम कहते हैं कि तूने मुझे एक मारा, ये ले एक और मार ले, है ना, तभी हम परमेश्वर के जैसे जीते, है ना। इसका मतलब है परमेश्वर का राजदूत रहना, कि हम दुनिया में है पर दुनिया से अलग है, कि दुनिया एक तरह करती है पर हम वैसे करते हैं जैसे परमेश्वर ने हमको कहा है ना। इंग्लिश में हम परमेश्वर के राज्य को अपसाइड डाउन किंगडम कहते हैं। उसका मतलब ये उल्टा पुल्टा है ना, कि दुनिया कहती है कि अगर किसी ने तुमको चोट पहुंचाया, तुम उसको दुगना तिगना चोट पहुंचाओ। पर परमेश्वर क्या कहता है, राज्य क्या कहता है, अगर किसी ने तुमको चोट पहुंचाया तो पहले तुम उसको माफ करो और फिर उससे प्यार करो। क्या दुनिया ये कहती है? नहीं ना। तो हम जो कुछ भी करते हैं
उसमें हमको याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। Amen. ओके, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो हम कैसे बनते हैं ये राजदूत? ओके, अच्छी बात यह है कि बाइबल में हमको दिखाया गया है कि हम ये परमेश्वर के राजदूत कैसे बने, है ना, कि हम राज्य के लोग कैसे बने। और ये हम देखते हैं मत्ती 5 से 7 में। तो पहली चीज, किंगडम पीपल आर सॉल्ट एंड लाइट। राज्य के लोग जो है वो एक नमक और ज्योति है। ओके, मैथ्यू 5:16 इन द सेम वे, सॉरी, और मत्ती 5:16 में लिखा है कि इसी तरह से तुम इस जगत की ज्योति है, तुम्हारी ज्योति है दूसरों को दिखाई दे, ताकि वो तुम्हारे अच्छे काम को देखे और परमेश्वर जो पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। ओके, वी ब्रिंग लाइट इनटू अ डार्क वर्ल्ड। और हम इस अंधकार में उजाला लेके आते हैं। Okay, as Christians, as kingdom people, we have the ability and we have heaven's armies with us to affect change. और एक मसीही होने के नाते हमारे पास वो क्षमता है और परमेश्वर का अधिकार है कि हम बदलाव ला सकते हैं। Okay, we are called the light of the world. हमें बुलाया गया है कि इस जगत की ज्योति है। What is the light of the world? और जगत की ज्योति का अर्थ क्या है? क्या है? What is the light of the world? How do we get light on this planet? और ये जगत का ज्योति, इसका अर्थ क्या है? इस दुनिया में हम प्रकाश कैसे लाते हैं? कहाँ से आता है प्रकाश? सूरज, है ना। प्रॉब्लम क्या है ना, हम एज क्रिश्चियंस ना, हम छोटा सोचते हैं, है ना। वचन कहता है कि हम सूरज जैसा हमारा प्रकाश है ना, मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत रोशनी है, करेक्ट। पर हमको क्या लगता है, हम लाइट बल्ब है, 0 वाट लाइट बल्ब, या ये मिर्ची लाइट, कि हमारा प्रकाश सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना छोटा सा। पर शास्त्र वो नहीं कहता है, शास्त्र नहीं कहता है कि हम मिर्ची लाइट है, शास्त्र कहते हैं कि हम प्रकाश है। हमारा प्रकाश बहुत पावरफुल है, है ना। वो इट कैन रीच द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, वो जग के अंत तक अपना प्रकाश पहुंच सकता है। ओके, सो डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज वन मिर्ची लाइट, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द सन। तो एक अपने आप को ऐसा ये मिर्ची लाइट ना समझो, आप एक सूरज की तरह हो। ओके, किंगडम पीपल हैव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब हमारे इस राज्य के जो लोग हैं उनका जीवन का स्तर एक ऊंचा स्तर होता है। Okay, Jesus tells his followers, you've been told not to commit murder, but I tell you, if you even call your brother an idiot, you have come in anger. If you call your brother an idiot in anger, you've already committed murder. यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि तुमने सुना है कि कभी किसी का खून मत करो, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम किसी को अपने गुस्से में मूर्ख कहते हो तो भी तुमने ये पाप किया है। Same with adultery. और इसी तरह व्यभिचार भी। Okay, he says it is not the act of adultery, but if you even look at a woman wrongly, you've committed adultery. अगर व्यभिचार यानी वो कृति करना यही नहीं, लेकिन अगर आप किसी स्त्री को ऐसे बुरी नजर से देखते हो तब भी आपने व्यभिचार किया है। So what does this say? This talks about a higher standard of living. It talks about a purity of heart. और ये क्या कह रहा है कि अपने जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, अपना हृदय पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। Okay, before the hands commit it, the mind has conceived it and the heart has already enjoyed it. हाथ की कृति होने से पहले ही जो मन में उसका निर्माण हो गया है और अपने दिल ने उसका आनंद लिया है। We are called to a higher standard. लेकिन हमें एक नए ऊंचे जीवन के स्तर के लिए हमें बुलाया गया And we है। can't do it ourselves. We need Jesus to do लेकिन this. हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं, हमें यीशु की जरूरत है। Okay, kingdom people forgive large-heartedly. और जो राज्य के लोग हैं वो क्षमा करते हैं पूरे खुले दिल से। Okay, we forgive because Jesus forgave us. हम क्षमा करते हैं Forgive क्योंकि us. क्योंकि यीशु ने Forgive हमें us. Where Jesus forgave us. हम क्षमा करते हैं क्योंकि यीशु ने हमें क्षमा किया है। Okay, we do not have a reason to not forgive. और हमारे लिए कोई कारण नहीं कि हम क्षमा न करें। You know why we find it difficult to forgive? क्यों हमें मुश्किल होता है क्षमा करना? It is our pride. क्योंकि हमारे पास है Okay, घमंड। we feel that our sin is way lesser than my brother or sister's sin. क्योंकि हमें लगता है कि मेरा जो पाप है वो तो इतना सा है, तो इसका तो बहुत बड़ा है। You understand? But all of us have sinned. लेकिन ये जान लीजिए सबका पाप है, And सबके all our पास। sins are equally bad in front of God. और हमारे सारे पाप उतने ही खराब है परमेश्वर के Because नजर He में। has forgiven us large-heartedly and He still continues to forgive,
we forgive our brothers and sisters. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरे खुले दिल से इस तरह से क्षमा किया है, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। Okay, forgiveness is not a feeling. Okay, forgiveness is a decision to trust God. और ये जो है ये जो क्षमा करना है, इसका मतलब सिर्फ मन में जानना नहीं, लेकिन ये हमारा निर्णय होता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं उसके लिए। Even our enemies, we are not only supposed to forgive them, we are supposed to love them. हमारे जो शत्रु है उन्हें भी क्षमा करना ही नहीं, लेकिन उनसे प्यार करना यीशु सिखाते हैं। Proverbs 25 verse 21 to 22 says, if your enemy comes and tells you, I am hungry or I am thirsty, give him food and water, because when you do that, you will confuse him. और ऐसे है कि नीति वचन 25, 21 और 22 में लिखा है कि अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, क्योंकि यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इससे करने से आप अपने शत्रु को भ्रम में डालोगे। Okay? He just be confused. Why is this person being good to me? और शत्रु कहने लगेगा, भाई ये आदमी क्यों मुझसे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है, He or she may change their ways, और उसके कारण शायद उसका जो बर्ताव है बदल जाए, or they may leave you alone. और नहीं तो आपको अकेला छोड़ देंगे वो। But either ways, we are supposed to show love. कैसे भी हो, लेकिन उन लोगों को हमें प्यार दिखाना ही है। Remember, brothers and sisters, we are most like our King when we forgive large-heartedly. और जान लीजिए कि हम जब खुले दिल से दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपना जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है ना वो दिखाते हैं। Okay, kingdom people are praying people. और जो राज्य के लोग जो है वो प्रार्थना करने वाले 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18 says, pray at all times. 1 थिस्सलुनीकियों 5, 16, 18 में लिखा है कि हर समय प्रार्थना करो। Come for the Friday prayer. शुक्रवार की प्रार्थना को जरूर आना। And all of you who come, well done for coming. जो भी आते हैं आपके लिए शाबाशी, बहुत ताली बजाएं। Okay? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Remember Friday prayer, that is the engine room of this church. ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार की जो प्रार्थना है यहाँ के कलीसिया की एक जैसे इंजन है वो। Okay? There is nothing great achieved in the world without prayer. अभी कुछ भी आप अच्छा और महान कार्य आपको देखना है इस दुनिया में, प्रार्थना से शुरू होगा वो। Okay. Kingdom people seek the kingdom. और राज्य के लोग राज्य को खोजते हैं। Matthew 6 verse 33 says, मत्ती 6:33 में लिखा है कि परमेश्वर को उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजो तो सारी बातें जो है वो तुम्हें दी जाएगी। I want to ask you, are we kingdom thinkers? Are we kingdom first thinkers or me first thinkers? अब जरा सोचिए, क्या मैं राज्य को पहले रखता हूं या अपने आप को पहले रखता हूं? हाँ? Who? क्या? क्या अरे है? जवाब दो। किसको? मेरे को मत दो, खुद को जवाब दो। बाजू वाले को दो। नहीं, बाजू वाले को भी मत दो, कुछ भी मत दो। जवाब दो, क्या मैं अपने आप को पहले रखता हूं या परमेश्वर के राज्य को पहले रखता हूं? सोचिए। हाँ? जो भी परमेश्वर का राज्य बोलेगा, देखो वो टेस्ट करेगा तुम लोग को, बाद में बोलना मत। बट अगर इफ यू यूज द एनालॉजी ऑफ मनी, लेकिन आप जानो कि हम पैसे के बारे में, समझ लो पैसे के बारे में बात करते हैं। दोस हु आर टाइट फिस्टेड विद देयर गिविंग, जब वो लोग जो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यू नो व्हाई दे डोंट गिव? बिकॉज दे लाइक, अगर मैंने दिया है ना, अगर मैंने दिया और कल मेरे पास कम पड़ा तो क्या होगा, है ना? तो मैं मेरे लिए रखता हूं क्योंकि कल शायद मुझे लगेगा। पर क्या शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि कल की चिंता कल को करने दो, कल की चिंता कल को करने दो। और तुम क्यों चिंता ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारा पिता जो है वो जो पंछियों को खाना देता है ना, वो जो बड़े बड़े ग्राउंड पे जो भी फूल है ना, उनको सजाता है, क्या वो तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता? तो हम क्यों ऐसा पीछे रखते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हमको कल की चिंता है ना। जब हम कल की चिंता करते हैं ना, हम एक्चुअली क्या कहते हैं पता है? हम कहते हैं कि परमेश्वर, आई एम सॉरी, पर मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। मुझे मेरे पे विश्वास है क्योंकि तू मेरा ख्याल नहीं रख पाएगा, मुझे मेरा खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
शास्त्र कहता है कि हमको उसके राज्य के के पीछे पहले जाना है, Amen. फिर बाकी सब कुछ हो जाएगा। Yes. कभी अगर टाइम मिला तो एक दिन आप फ्रैंको का टेस्टिमनी सुनना, है ना, उसको पूछ लेना। जो फ्रैंको और स्वीटन ने एक बहुत ही अफलातून चीज़ किया था बहुत साल पहले, है ना, वो मैं शेयर नहीं करूँगा, वो शेयर करेंगे। और कैसे परमेश्वर ने उनको इतने सालों से रखा है, Amen. और जो उन्होंने दिया है उससे कई गुना ज़्यादा वापस मिला है। करेक्ट? Amen. कई गुना ज़्यादा वापस मिला है। Wow. Amen. क्योंकि सेम चीज़ मैं भी बोल सकता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी शादी होने वाली है 1-2 महीने में। थैंक यू। ओके, और क्या है, तो मैंने शादी के लिए पैसा सेव करके रखा है ना, सब लोग करते, तो मैंने थोड़ा बहुत सेव करके रखा है। पर मेरे को वो पैसा नहीं तोड़ना है, मेरे को पैसा नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये पिछले जो सालों में मैंने सेव किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जाके वो पैसे को देखना। फ़ोन पे जो ऐप है उस पर पता चलता है ना कितना पैसा है, वो पैसे को देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ भी हो वो पैसा है मेरे पास, है ना। और तो जब ये बात हो रही थी, है ना, इस शादी की, और इतना खर्चा होगा, ये होगा, और मैं रोज़ उठ के बोलता था कि यार मेरे को ये नहीं तोड़ना है, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है ये पैसे को देखने के लिए। ओके, और बहुत मेरे को बहुत उतल पुतल हो रहा था मेरे अंदर वो ये तोड़ने के लिए। अरे मतलब शादी के लिए क्यों खर्चा, नई गाड़ी ले लूंगा, है ना। और आई हैड मतलब मेरी शांति चली गई थी। ओके, और फिर मैं प्रार्थना कर रहा था, और मेरे को परमेश्वर ने ऐसे कहा ये कुछ हफ्ते पहले कि क्या तू मुझ पे विश्वास करता है, क्या तू डू यू ट्रस्ट मी, क्या तू मेरे पर विश्वास रखता है। और वो कहता है कि यार क्या तेरे को तेरे पिता पे विश्वास है या वो पैसे पे विश्वास है जो मैंने ही तुझे दिया है। मेरे पैसे कहाँ से आए हैं यार, ना ही मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ना ही मैं बहुत व्हाट इज हार्ड वर्क, ना ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, है ना। वो पैसे जो मेरे पास आए हैं वो आए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो अगर उसने दिया है एक बार तो वो फिर से नहीं देगा, हाँ देगा ना। और अगर उसने पहली बार इतना दिया, दूसरी बार वो और देगा या कम देगा, पर वो देगा। करेक्ट, वो फिर से दे सकता है। तो ये मेरे को लगा परमेश्वर ने मेरे को, क्योंकि मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा जो विश्वास है वो मेरे पैसे के ऊपर गया था। और ये सिर्फ मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ लाइफ में, है ना। जब भी मैंने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखा है तब तक मेरा लाइफ एकदम सही से गया है। जब भी मैंने खुद के ऊपर भरोसा रखा है तब लाइफ में बहुत सारे वांदे हुए, है ना। किंगडम पीपल नो व्हाट दे बिलीव इन। राज्य के लोग जानते हो किसमें विश्वास रखा है। I couldn't do this in the English, but I feel it's very important I say this to you. लेकिन अंग्रेजी में वो नहीं कर सके, लेकिन मैं वो जानते हैं कि ये आपके साथ में बांटना बहुत जरूरी है। We need to know why we believe and what we believe. हमें जानना जरूरी है क्यों हम विश्वास करते हैं, किस में विश्वास करते Because there are false gospels all around us. हैं। और झूठे सुसमाचार बहुत सारे हैं आजू बाजू में। They sound really good, but they don't preach Christ crucified. Okay? वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो यीशु और क्रूस पे मरा हुआ यीशु Okay, के बारे में प्रचार नहीं करते They हैं। promise comfort without the cross, prosperity without purpose, and blessings without repentance. और Okay? उनके वादों में ये है कि आराम, क्रूस के बिना आराम, और उसके साथ में समृद्धि कुछ मकसद के बिना, उसके तरह आशीर्वाद पश्चाताप के बिना। But that's not the gospel. लेकिन वो हमारा सुसमाचार नहीं Matthew है। 7 tells us that the gate is narrow. और मत्ती 7 में लिखा है कि जो दरवाजा है वो छोटा है। Okay? How many of us have gone through a narrow gate? कितने लोग ऐसे छोटे से दरवाजे से अंदर गए हैं? How you have to squeeze, right? इस तरह से अपने आप को मूडना पड़ता है अंदर जाने के लिए। When it says that the road is narrow, it means it's difficult. जब लिखा है कि रास्ता जो है वो छोटा है, इसका मतलब वो बहुत ही मुश्किल वाला रास्ता है। The disciples suffered. ये शिष्य जो है उनको तकलीफें आई। Christians in India are suffering today.
और आज भी जो ख्रिस्ती लोग हैं वो सताव के नीचे हैं। If you and I don't know what we believe in, we are going to fall for the wrong gospel. अगर हम जानते नहीं है कि क्या किस में हमें विश्वास रखा है, तो हम लोग ये जो झूठा सुसमाचार है उसके पीछे जाएंगे। Okay, and please remember this. If you don't believe in something, you will fall for anything. अगर आप और एक बात आप ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ में किसी में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप किसी के भी पीछे चले जाओगे। Okay? The Bible tells us, okay, शास्त्र कहता है कि हमको अपने दिल से, मन से और दिमाग से परमेश्वर से प्यार करना है। करेक्ट? हमको अपने दिमाग से भी करना है। ओके, मतलब हम जो वचन पढ़ते हैं, ओके, व्हाट इज डॉक्ट्रिन कॉल्ड? सिद्धांत। जो अभी अमित ले रहा है सिद्धांत, वो पुराना नियम जो कर रहा है ना, सिद्धांत जो सिखा रहा है ना, वो हमको सीखना चाहिए, वो हमको बाय हार्ट करना चाहिए, वो हमको हमारे दिल और हमारे दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीज है। हमको जानना चाहिए। अगर कल तुमको कोई आके पूछेगा यार तुम इस चीज में क्यों विश्वास करते हो, तो तुम ये नहीं बोल सकते अरे वो फ्रैंको ने बोला था संडे को इसके लिए मैं विश्वास करता हूं। नहीं, फ्रैंको का विश्वास तुम्हें और मेरे को नहीं बचाएगा, हमारा विश्वास हमको बचाएगा। करेक्ट? तो हम क्यों विश्वास करते हैं चीजों में, और है ना, और लोग कहते हैं कि ओ प्रॉबेबली हिंदी स्पीकिंग लोग, ओ प्रॉबेबली ये काम करता है, वो काम करता है ज्यादा। मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर एक जन जो यहाँ पे है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है और आपको बहुत ही अच्छा दिमाग दिया है ताकि आप और सीख सके उसके बारे में और उसके राज्य के लिए। ओके, there is a very famous saying that says every Christian should be a theologian. और एक बहुत अच्छी कहावत है कि हर जो मसीह है वो पवित्र शास्त्र जानने वाला ऐसा व्यक्ति हो। ओके, बिकॉज यू मे बी सिटिंग देयर एंड सेइंग, आप वहाँ पे बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि अरे मैं तो कभी किसी को क्या सिखाने वाला हूँ। पर सच बात यह है कि हम हमारे जिंदगी में हम हमेशा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं, करेक्ट, हमारे दोस्तों को हम सिखाते हैं, हम उनको कहते हैं चीज़ें, राइट, हमारे फैमिलीज में हम सिखाते हैं और हम खुद को भी सिखाते हैं। तो हम सबको ये शास्त्र को सीखना है ताकि हम दूसरों को सिखा सके, ताकि हम जो सच्चा गॉस्पेल है, जो सही, व्हाट इज गॉस्पेल, जो सच्चा सुसमाचार है, वो हम बांट सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज। अंत में, ओके, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, हम एक सामान्य लोग नहीं हैं, वी आर किंगडम पीपल, अब राज्य के लोग हैं। ओके, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, और यीशु के हम स्वर्ग वी कैरी हिज लाइट, और हम उसका प्रकाश को लेके जाते okay, हैं। I hope brothers and sisters wherever we go we take God's righteousness, peace and joy with us. और भाई है ना, मैं मानता हूँ कि हम जहाँ भी जाएं और परमेश्वर का जो धार्मिकता है, उसका आनंद है, उसकी जो शांति है वो लेके जाएं। May our lives declare that Jesus reigns. और हमारे जीवन के द्वारा हम दिखाएं कि हमारा राजा राज्य कर रहा है। Okay, may people look at us and see the culture of heaven breaking through. और अब जब हम लोग हमें देखें तो वो परमेश्वर की जो संस्कृति है उसको देखें। And may you and I live in such a way that when Jesus returns, he will say, "Well done, my good and faithful servant. You represented my kingdom very, very well." और जब ऐसी तरह से हम जिए कि जब यीशु वापस आए हम उसे मिले, तब वो कहे मेरे विश्वासी सेवक बहुत अच्छे, तुमने मेरा अच्छा प्रतिनिधित्व किया है। Okay, God bless you all. Thank you so much.